Hello, I'm Dr. Kruti Prajapati. Today we start the transportation problem. Okay, in this transportation problem, first of all, we learn about the allocated cell. Okay, uh, how we allocate a cell. So if there are destination D1, D2 and there are sources S1, S2. Okay, suppose here X11, X12, here X21, X22. Okay, this is the matrix and the order of matrix is 2 by 2. Okay, here the column is supply and here the row is demand. Okay, if there is a supply of here 10 and here 19, here 8 and here 11. Okay, so what should we first do? First of all, we have to ensure that the given transportation problem is balanced or not balanced. So how can we find it is balanced or not? So we have to add the total number of supply. Here the supply of S1 is 10. Here the supply of S2 is 9. 10 plus 9, 19. Similarly, for demand we add 8 and 11. 8 plus 11 is also 19. Means the demand and the supply both are equal. So that is the necessary and sufficient condition for the balanced transportation problem is what? The total number of demand, okay, is equal to the total number of supply. Okay, so the given problem is called balanced transportation problem. Okay, if it is not balanced, if both are not equal, then we add dummy row or dummy column. Suppose here if we have here 8 and here same, so total number of supply is what we have 18 and total number of demand is what 19. So how can we add dummy row or column? So here it is 18, so one supply is less. Okay, so we add one dummy row. So here we add dummy row, that is S3, which has 0 cost, and here we write 1. Okay, so we add dummy row, that is S3 with cost 0 कॉस्ट से हम लोग एक रो ऐड करेंगे और जितना भी सप्लाई कम पड़ता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे. सो अवर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल बिकम a balanced transportation problem. Okay, now the second thing and the most important thing in the transportation problem is the allocations. Okay, हमें जो सेल है उसको अलोकेट करना है. तो वो कैसे अलोकेट करते हैं? तो वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे. ठीक है, सॉरी, सप्लाई और डिमांड. ओके, अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आपके पास आपको कुछ डिमांड है, अगर आप कुछ शॉप है और शॉप में आपको चाहिए अगर 100 यूनिट का आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपकी डिमांड है 100 यूनिट. जो सप्लायर है आपके पास सप्लाई करने आ रहा है उसके पास 1000 यूनिट है, तो ऑब्वियसली आप 100 यूनिट ही लोगे क्योंकि आपको डिमांड कितनी है 100 यूनिट की. तो बाकी के 900 यूनिट आप उसके पास नहीं लोगे. ओके, तो वही थियरी आप लोग को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है कि आपका डिमांड जो भी है या सप्लाई जो भी है उस दोनों में जो भी मिनिमम होगा, डिमांड और सप्लाई में जो भी मिनिमम रहता है वो पर्टिकुलर सेल में अलोकेट करना है. अंडरस्टैंड, रिमेंबर दैट, आई रिपीट, डिमांड और सप्लाई दोनों में जो भी मिनिमम अमाउंट है वो हमें अलोकेट करनी है और यही क्राइटेरिया पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में रहेगा. ठीक है,
तो हम लोग फर्स्ट सेल में देखें तो यहाँ पे डिमांड है आपकी 8 और यहाँ पे आपकी सप्लाई है 10। सप्लायर आपके पास आ रहा है, उसके पास 10 यूनिट है, लेकिन आपकी डिमांड है सिर्फ 8 यूनिट की, तो आप ऑब्वियसली उसके पास 8 यूनिट ही लोगे, राइट। सो हियर वी अलोकेटेड सेल मस्ट बी रिटन इन लेफ्ट कॉर्नर एंड मस्ट बी रिटन इन सर्कल, अदरवाइज ब्रैकेट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अलोकेट करेंगे 8। ओके, सो इट इज कॉल्ड allocation, and this cell x11, this cell is called occupied cell. What? Occupied cell. Okay, now we allocate here 8, so here demand of destination 1, destination 1 की जो डिमांड थी वो सेटिस्फाइड हो गई। ओके, वो सेटिस्फाइड होगी तो हम लोग उसको क्रॉस आउट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 0, राइट। एंड फॉर सप्लायर S1 they have 10 unit of 10 unit, but they gave only 8 unit to destination 1, so remaining unit are what? 10 minus 8, that is equal to 2. Okay, this is called the allocation. डिमांड और सप्लाई में जो भी मिनिमम है वो यहाँ पे अलोकेट करना है। जितना भी अलोकेट किया है उसको क्रॉस आउट करके जो रिमेनिंग टर्म है वो लिखनी है। यहाँ पे हमने 8 डिमांड थी, 8 अलोकेट कर दिया, तो 8 क्रॉस करके हमें लिखना है 0। एंड यहाँ पे 10 यूनिट था, तो 10 में से हमने 8 यूनिट दे दिए हैं, तो हमारे पास बचे हैं बाकी 2। ओके, so it is the most important thing कि how we allocate the cell and how we allocate the value in the particular cell. Okay, now what is remaining here? 2. Okay, so we allocate here सप्लायर के पास सप्लाई कितना है? 2। डिमांड कितनी है D2 की? 11। बट अगर वो टेम्पो लेके आया है, 10 यूनिट लेके आया था, 8 यूनिट तो D1 ने ही ले लिए, तो D2 के पास जाते जाते उसके पास कितना यूनिट बचेगा? सिर्फ 2 ही बचेगा, तो वो कितना अलोकेट करेगा? 2 ही। ओके, मीन्स जो डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम है वो है 2, तो यहाँ पे हम लोग अलोकेट करेंगे 2। ओके, तो अलोकेट किया 2, तो यहाँ पे सप्लायर के पास सप्लाई खत्म हो गया, सो वी कैन राइट हियर 0। एंड यहाँ पे 2 हमने दे दिया, 11 में से 2 दे दिया, तो बाकी कितना बचा? 9। ओके, 9 बचा। हम लोग ये सेल पे जाएंगे, यहाँ पे डिमांड भी 9 है, सप्लाई भी 9 है, तो हम लोग यहाँ पे अलोकेट करेंगे 9। सो यहाँ पे क्रॉस आउट करके 0, यहाँ पे क्रॉस आउट करके 0। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कब सेटिस्फाइड होता है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों अलोकेट हो जाए, तब मीन्स पूरा जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स है उसमें जो डिमांड और सप्लाई है वो क्रॉस आउट करके सब क्या हो जाना चाहिए? 0। ओके, देन वी गेट द फाइनल आंसर। और ये कब होगा पॉसिबल? जब द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ओके, understand how we allocate the cell and how we allocate the supply and demand into the cell. Okay, and the cell which here it is allocation, here that is allocation, here it is allocation. This cell are called occupied cell and this cell are called unoccupied cell. Okay, now we start one example. There are 3 methods. First, NWCM, second LCM, and third VAM. Okay, today we first learn NWCM. Okay, NWCM का मतलब है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके, नाम के हिसाब से ही वी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ कॉर्नर, allocated cell 1 by 1 and we go to the west corner. Okay, and at the west corner the total number of supply and demand should be 0. Okay, shall we start? Destination A, B, C and D. Sources S1, S2, S3.
Okay, and the last column is supply. Okay, and the last row is demand. Okay, the cost is, okay, this is called cost, that is x11, x12, 19, 30, 50, 10, 7, 10, 30, 40, 60, 9, 40, 8, 70, 20, 18. Similarly here 5, 8, 7, 14. Okay, now total number of supply is 9 plus 7, 16 plus 18, 34. And here 5 plus 8, 13 plus 7, 20 plus 14, 34. Means it is balanced transportation problem. Okay, now we allocate the cell, okay, by the use of NWCM. Okay, नॉर्थ कॉर्नर कौन सा है, ये, और वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये. देन वी आर स्टार्टेड allocation from here and we finished it from this cell. Okay, and at this cell we satisfied all supply and demand. Okay, it is necessary. Okay, shall we start? Here supply is 7, here demand is 5. Okay, then what is minimum, 5 or 7? Obviously 5, so we allocate here 5. Okay, then demand should be satisfied, demand is satisfied, so we cross it and write here 0. And for supply it is 7 and we supply a, destination A is 5, so we have remaining 2 units, so we write 2. 7 minus 5 is 2, so we write here 2. Okay, now here it is 0, here it is 2. Okay, so जहाँ पे भी रिमेनिंग सप्लाई और डिमांड रहता है वहाँ पे हमें नेक्स्ट एरो करना है. ओके, सो यहाँ पे एक बचा है तो हम लोग करेंगे यहाँ पे साइड एरो. सपोज यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे रहता है कुछ डिमांड, तो हम लोग डाउन एरो करते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग साइड एरो करेंगे बिकॉज यहाँ पे डिमांड हमारे पास बाकी है इसलिए. ओके, देन वी गो टू दिस सेल. हियर डिमांड इज 8 एंड हियर सप्लाई इज 2. Okay, so what should be add, allocate? It is 2 because from 8 and 2, 2 is minimum, so we allocate here 2. So supplier के पास supply खत्म हो गया, so we write here 0 and demand 8 थी, इसमें से उसको सिर्फ 2 ही यूनिट मिले, तो उसके पास कितनी अभी डिमांड बाकी बची, 6. ओके, 8 minus 2 is 6. अंडरस्टैंड. नाउ ये सप्लायर के पास सप्लाई 0 हो गया, सो ये एलिमिनेट कर देना है, ये निकाल देना है लाइन. तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिमांड कितना है, 6, तो हम लोग जाएंगे डाउन एरो. सो डाउन एरो करेंगे तो हम लोग कौन से सेल में पहुँचेंगे, ये सेल में. ये सेल में यहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली जो है ऑलरेडी वो 6 है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर के पास सप्लाई कितना है, 9. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना अलोकेट होगा, जो मिनिमम है वो मिनिमम कितना है, 6 और 9 में 6. ओके, तो ये सेल में हम लोग अलोकेट करेंगे कितना, 6. सो हियर वी अलोकेट 6. ओके, नाउ डिमांड इज सेटिस्फाइड, सो वी क्रॉस इट एंड वी राइट हियर 0. ओके, बट जो सप्लायर है उसको कितना यूनिट दिया है, यहाँ पे बी डेस्टिनेशन को सिर्फ 6 यूनिट ही दी है, जबकि उसके पास कितने यूनिट है, 9 यूनिट है. ओके, सो वी क्रॉस हियर 9 और उसको 6 दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 3. ओके, नाउ यहाँ पे हो गया 0, तो हम लोग डाउन तो नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है वो डेस्टिनेशन बी का डिमांड है वो ख़त्म हो गया है, सो वी एलिमिनेट दिस रो. ओके, तो यहाँ पे कितना बचा है, रिमेनिंग 3 सप्लाई बचा है, तो हम लोग जाएंगे ये कॉर्नर में, ये सेल में. ओके, ये सेल में हमारे पास डिमांड कितना है, 7 है, बट सप्लायर के पास सप्लाई कितना बचा है, ओनली 3. ओके, तो हम लोग यहाँ पे अलोकेट करेंगे 3 यूनिट. नाउ
supplier has 0 unit, so we cancel here 3 and we write here 0. But the destination has demand 7 and he got only 3 units, so he also want another unit. How many units he want? 4 unit. Okay, because 7 minus 3 is 4, so destination C also demand is 4. ओके, सो यहाँ पे डिमांड बचा है तो हम लोग जाएंगे डाउन एरो पे, और यहाँ पे सप्लायर के पास सप्लाई खत्म हो गया, सो वी एलिमिनेटेड दिस रो, S2 रो बी एलिमिनेटेड, और हम लोग जाएंगे डाउन एरो क्योंकि यहाँ पे है डिमांड बचा है कितना 4, तो हम लोग जाएंगे ये सेल में। ये सेल में हमारे पास डिमांड है 4 और सप्लायर के पास सप्लाई कितना है 18। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 18 और 4 दोनों में मिनिमम है 4, तो यहाँ पे अलोकेट करेंगे हम लोग 4। ओके, 4 अलोकेट कर दिया, सो सप्लाई डिमांड जो था उसका वो सेटिस्फाई हो गया, सो वी राइट हियर 0, बट डिमांड हो गया 0, बट द सप्लायर हैज सप्लाई 18 यूनिट एंड ही ओनली gave 4 unit, so he had remaining 14 unit. Okay, now we go to this cell. Here demand is also 14, supply is also 14, both are equal, so we allocate here 14 units, so it is cancel and 0, it is cancel and 0. So you see all the demand and all the supply are satisfied. Okay, सारे end of the एग्जाम्पल सारे डिमांड और सारी सप्लाई सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, मीन्स सारी 0 हो जानी चाहिए। ओके, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो तब। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज द मेन अलोकेशन, ओके, मेथड ऑफ अलोकेटेड द सेल। नाउ वी फाइंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाउ कैन वी फाइंड इट? लुक, जो भी ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल किसको बोलेंगे? ऑक्यूपाइड सेल इज जहाँ पे भी हमने अलोकेशन किया है वो सेल, कौन सा? ये। ओके, दैट इज द ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल ही हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे है कितना, कॉस्ट कितना है 19, और वहाँ पे कितना यूनिट अलोकेट किया है 5। सेकेंड सेल कौन सा है? ये बी वाला। यहाँ पे कितना यूनिट है आपके पास, कितना कॉस्ट है उसका 30, और अलोकेट कितना है किया है 2, सो 30 इंटू 2। ओके, जो भी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है। या हियर 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 14. Okay, and now multiply and add it, we got the value of 1015 rupees. This is the total transportation cost. Okay, तो total transportation cost by NWCM हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, एंड समथिंग एल्स दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, IBFS, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, वो कैसे मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा, ये फर्स्ट सेल कौन सा होता है X11, उसमें कितना यूनिट हमने अलोकेट किया, इसमें कितना यूनिट हमने अलोकेट किया 5। सेकेंड सेल उसको क्या बोलते हैं X12, वहाँ पे कितना अलोकेट किया 2। ये सेल कौन सा होगा, X कौन सा होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, ये सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम, तो ये कौन सा होगा सेल X22, कितना अलोकेट किया है यहाँ पे 6। या ये कौन सा सेल होगा थर्ड कॉलम, एंड कौन सी रो सेकेंड रो, मीन्स सेकेंड रो हम लोग पहले रो लिखते हैं, तो X रो कौन सी है सेकेंड, तो यहाँ पे होगा 2, कॉलम कौन सी है 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, X23 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे थर्ड रो मीन्स X3, कॉलम कौन सी है थर्ड है, तो X33 वो क्या आएगा 4, एंड द लास्ट थर्ड रो, सो X3 कॉलम इज 4, सो X34 इज इक्वल टू व्हाट 14. ओके, दिस इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मीन्स डेस्टिनेशन ए को
5 यूनिट देना है, डेस्टिनेशन बी को 2 और +6 8 यूनिट देना है, लेकिन इस तरह से बाइफर्केट करके देना है। वो जो सब हमें गिन के बताता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में पता चलता है कि कौन से सोर्सेज को कौन से डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट सप्लाई करने हैं। ओके, कि हम लोग जो टोटल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको मिनिमाइज कर सके। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हमें नॉर्थ कॉर्नर से स्टार्ट करना है और हमें वेस्ट कॉर्नर में फिनिश करना है बाय द अलोकेशन। ओके, got it? If you have any query, then you can call me or contact me or text me. Okay.